عرفان رمضان میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور یہ خوبصورت نشریات سجائے بیٹھے ہیں ہم آپ کے لیے، اور ایک ایسے مہمان جو یہ مہینہ بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ اچھے کام کرو، متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو. اور اس سے بہتر کام کیا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، ان کے لیے بہتر سوچا جائے. سو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ویسے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھلائی کریں، ان کو مشکل سے نکالیں، لیکن ان پر اللہ کی خاص عطا ہے. رب تعالیٰ نے انہیں چنا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے، وہ چاہے آواز دے یا نہ دے، یہ وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کون کس زبان سے ہے، کس رنگ کا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک جیتی جاگتی انسپریشن ہے. ایک عرصے سے بہت خوبصورت ادارہ ماشاءاللہ سے چلا رہے ہیں، لوگوں کو چھت دیتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ان کو اپنا سہارا دیتے ہیں. سارے بڑنی ٹرسٹ کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارے بھائی السلام علیکم. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک، اور آپ کو عرفان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے ہمارا سیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ امید ہے کہ آپ کی امیدوں کے مطابق ہوگا. میں نے آتے ہی کہا کافی عرصے کے بعد رمضان کی خوشبو آئی ہے. ماشاءاللہ. میں نے آتے ہی یہ کہا تھا ان کو. آپ کو رمضان الکریم کی خوشبو آ گئی، اب آپ کو اردو کی خوشبو بھی آئے گی. انشاءاللہ. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. جب اردو کا تعارف ہوتا ہے تو ایک نام بار بار ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا نام جو بہت عرصے سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اردو کے ٹیچر ہیں، اور ساتھ ساتھ صرف ٹیچنگ کے شعبے سے نہیں جڑے، شعبے تدریس سے نہیں جڑے، بلکہ تقاریر، فن خطابت کو سنوارتے رہتے ہیں، بچوں کو سکھاتے رہتے ہیں. سیاستدان بھی ہیں اور سیاسی بڑا گہرا تجربہ رکھتے ہیں، تجزیہ رکھتے ہیں. آج کی اس محفل میں، اس بزم میں تقریری مقابلے کے جج کی حیثیت سے تشریف لے کر آئے جناب عابد علی امنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مبارک. اللہ تعالیٰ ثنا، آپ کو پتہ ہے کہ عابد علی امنگ تقاریر کی دنیا کے میرے لیے بادشاہ ہیں، اور ججمنٹ مجھے بھی کر چکے ہیں. یعنی اس سے پہلے ایک نجی ٹیلی ویژن پہ ایک ٹرانسمیشن تھی، اور شاید وہ میری پہلی ٹرانسمیشن تھی رمضان کی، جس میں مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ عابد علی امنگ مجھے جج کر رہے تھے. اور بہرحال یہ کہ میں بہت کچھ سیکھتا رہا ہوں، مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں. اچھا، ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گی کہ یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، اور یہاں بیٹھنا، اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا کہ میں اس خوبصورت نشریات کا حصہ بن سعادتوں کو سکوں. لذتوں میں تبدیل کریں. اور ہمارے پاس موجود ہیں شیف اسد، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پورا سال آپ ان کو جی ٹی وی کی خوبصورت سی اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں. لذتوں سے بھری ہوئی گفتگو تو ہے، مگر لذتوں کے ساتھ ساتھ کھانے اور پکوان کا کیا ذائقہ ہے، یہ تعارف آپ کو شیف اسد کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، رمضان مبارک. اسد بھائی، کیا آج کی ڈش ہے، کیا معاملات ہیں؟ بالکل، آج جو ہے کیونکہ پہلا رمضان ہے، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک. اور آج جو ہے ہم 2 ریسپیز آپ کے لیے شیئر کریں گے. چاٹ ہر گھر میں بنتی ہے، آج تھوڑی سی ڈفرینٹ میمنی چاٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سے پکوڑا فرائز ہم آپ کے لیے شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سے پروڈکٹس یہاں موجود ہیں، اور پروڈکٹ کے بارے میں بھی انٹروڈکشن میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے، کیونکہ کچن میں جب آپ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے، اور ہمارے پاس واہ، کیا بہترین درس دیا ہے آپ نے. ڈیٹول والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جی بالکل، اور سب سے پہلے آج کل ویسے بھی کووڈ ہے، آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ویسے بھی واش کرنے ہیں، اور کچن میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کر لیجئے. چلیے، تھینک یو ڈیٹول. اور یہاں پر جناب میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے پاس بہت سارے یہاں پر پروڈکٹ موجود ہیں، جس میں آلپرس موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ ٹینک موجود ہے. ڈفرینٹ ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے گاہے بگاہے. SAC میرے پاس موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سیلانی مسالے آپ نے اس سے پہلے بھی میرے ساتھ دیکھا، بہت ساری ریسپیز ہم نے آپ کے لیے سیلانی مسالوں میں بنائی، اور آج بھی ہم ان کی نمک، چاٹ مسالہ، لال مرچ، ہلدی، یہ سب ہم یوز کریں گے سیلانی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شہنشاہ رائس بھی موجود ہیں، اور بہت ہی زبردست ان کی رائس کی کوالٹی ہے. تو یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی. اور
आज की जो रेसिपी है इसमें भी हम यूज़ करते रहेंगे। और आखिर में हमारे पास मौजूद है कुकिंग क्रीम। कुकिंग क्रीम जो है प्रिचिज हमारे पास यहाँ मौजूद है, बहुत ही बेस्ट क्रीम है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना, नॉर्मल जो हम क्रीम जब यूज़ करते हैं कुकिंग में, तो हम आपको अक्सर बताते हैं कि कुकिंग क्रीम, तो वो क्रीम जो होती है मल्टीपर्पज़ होती है, आप उसको किसी भी चीज़ में, फ्रूट चाट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रिचिज जो है क्रीम है वो ये है कि आप इसको कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। और आ जाते हैं आज की फ़र्स्ट रेसिपी। हमें जो हम बना रहे हैं मेमनी चाट, उसके लिए हमें काले चने चाहिए। और तकरीबन मैं यूज़ कर रहा हूँ आज, काले चने जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 1 कप हमने उसको बॉईल कर लिया है, ठीक है। उसके साथ हमें यूज़ करना है तकरीबन 4 खाने के चम्मच बेसन, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे आधा किलो दही। सबसे पहले हमने क्या करना है, दही में बेसन ऐड करना है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, नमक यूज़ करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने कड़ी को पकाना है जिस तरह से हम यूजुअली कड़ी पकाते हैं। आपने पैन में तमाम दही में मिक्स जो हमने सारी चीज़ें मिक्स की हैं उसको हम पकाएंगे, और उसके बाद फिर हमने इसमें चने डालने हैं, और उसके बाद इसकी गार्निशिंग होगी। और वो गार्निशिंग क्या होगी ये भी आपको बताएंगे और साथ साथ दिखाएंगे भी। तो जब तक मैं ये प्रोसीजर चॉपिंग और सारी चीज़ें करता हूँ, तो हम चलते हैं वापस वैस भाई के पास, ताकि हम गेस्ट से भी बात कर सकें। आपने जो तारुफ कराया है, अभी से यकीन माने बहुत मुश्किल है रोज़ा बरकरार रहे, मगर इंशाल्लाह रहेगा। नहीं लग नहीं रहा, मगर लग रहा है कि लग जाएगा। अच्छा, वैसे प्यास की शिद्दत, क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं, कुछ महसूस हो रही है? प्यास की? पहला रोज़ा है। प्यास की? हाँ, अल्लाह बड़ा है। वैसे आप जब प्याज कहती हैं तो मुझे याद आता है कि आप अराई हैं और प्याज बहुत ज़्यादा पसंदीदा ग़िज़ा है मुझे आपकी। बिल्कुल नहीं पसंद है प्याज, लेकिन मैं उस वाली प्याज की बात करी थी जो इस वक्त रोज़े महसूस होती है। लेकिन हमारा सेगमेंट अंदाज़े बयां, अंदाज़े बयां अगरचा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये सेगमेंट है हमारा अंदाज़े बयां, जिसमें कॉलेज के डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, और इनको टाइम दिया जाएगा 2.5 मिनट का, जिसमें इन्होंने जो मौजू मुंतखब किया गया उस पर तकरीर करनी है। और हमारे जज साहब यहाँ मौजूद हैं। सो इजाज़त है मैं लोगों का नाम अनाउंस जज साहब की इजाज़त से। सर इजाज़त है आपकी? ओके। सो गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर अली। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको। और भी उस पर हमारे साथ मौजूद हैं शराज अली, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। जज साहब की इजाज़त से जी, सबसे पहली आवाज़ जो गूंजेगी वो होगी मुबश्शिर अली की। आपका वक्त शुरू हो जाता है दिल से। टाइमर बताइएगा, टाइम दीजिएगा। हाँ, 2 से 2.5 मिनट का टाइमर है, बीपर बजेगा, 2 मिनट पे बजेगा। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक ज़रा तारुफ भी हो जाए कि किन बुनियादों पे जज किए जाएंगे। आबिद भाई ये ज़रा बयान कर दीजिए। बेटा मेरा माशाल्लाह जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहें। बहुत सिंपल है, 50% आपके कंटेंट के मार्क्स हैं और 50% आपके जो है वो अदायगी, आपकी डिलीवरी के मार्क्स हैं। आपकी अदायगी में जब आप गुफ्तगू करेंगे तो आपका आई कांटेक्ट भी होगा, आपका यूज़ ऑफ माइक भी होगा, आपका यूज़ ऑफ रॉकस्टम भी होगा, आपकी पिच, किस तरह आपने पॉजेज़ लिए, ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ अदायगी का हिस्सा होंगी। और जब आप अपने मवाद को पेश करेंगे तो कितना फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपने पेश किया, कितनी खूबसूरत एग्जांपल्स दें, कोई लॉजिक है, कोई मंतिक है, या किसी भी बेहतर मारूजी हालात के तहत आप उस चीज़ को पेश कर रहे हैं, ये आपको इस बात की इजाज़त होगी। 50% डिलीवरी के मार्क्स हैं, 50% कंटेंट के मार्क्स हैं। ओके, और हमारा मौजू है हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। शुरू कीजिए जी, अगर आप शर्मिंदा हैं तो फिर दिल से कह दें। मैं सिसकती बिलकती कायनात का बाशिंदा हूँ, और इस कायनात जो कि करीबुल मर्ज़ है, और मैं इस कायनात की कब्र को अपने तसव्वुर में लाते हुए इंसानियत के करतूतों पर काँप रहा हूँ, जहाँ इंसान के जुल्मतों ने इंसान के हाथों ही इंसान का जीना हराम कर रखा है, जहाँ इंसान की अलमदद की बुलंद सदाओं को इंसान की बर्बरियत ने गले से दबोच रखा है, और जहाँ शाम ढलते ही उम्मीदों के खंडरात से ऐसी अलमनाक चीखों की सदाएं सुनाई देती हैं कि मैं अपनी रुकती सांसों के साथ इस बात का यकीन कर लेता हूँ कि उम्मीदें सुबह जमाल का सूरज मशरिक से उभरेगा न मगरिब से निकलेगा, कि हम शर्मिंदा इस दौर के इंसान होकर कि जहां इंसान इक़्तिदार की भूख में सैकड़ों इंसानी जानों का बलि चढ़ा देता है, कि जहां हाकिम वक्त की शीश महलों के बाहर मुफलिसों की मुफलिसी का जनाजा
गुलाबों की लड़ियों के बजाय गमों का तोहक पहना कर रुखसत किया जाता है कि हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि जहां हक का साथ देने वालों को जिंदानों में फेंक दिया जाए, कि जहां बातिल के खिलाफ बोलने वालों को सूली पे ना चढ़ाया जाए। कि सदर आली वकार हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि जहां दीन का नाम फैलाने वालों को दीन के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। कि शर्मिंदा हैं हम उस दौर के इंसान होकर कि जहां भूखे इंसानों की महफिलों में बिनते हवा को ढोल की थाप पर नचाया जाए और नन्ही कलियों को ज्यादती का निशाना बनाकर लावारिस सड़कों पर फेंक दिया जाए। कि हम शर्मिंदा इस दौर के इंसान होकर कि जहां खून मुस्लिम के टपकते कतरों की आहें, सिसकियां, सदाएं हम मुर्दा इंसानों की ज़मीरों को जगा न पाएं और अपने खालिक व मालिक के सामने ये सदा लगाएं कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक, कि चाहतों की रगे खुरे दे, हवस की सुर्खी रूखे बशर का हंसी गाजा बनी है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तरहे, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई है। कि सदर आली वकार आज इंसानियत के बीच में रहकर इंसानियत का शिद्दत से तलबगार है कि ना कि उसे कश्मीर में तड़पते बच्चों की सदाएं सुनाई नहीं देती, ना उन माहों की चीख पुकार सुनाई देती हैं जो अपने मासूम बेटों के लाशों के सामने तड़पती सिसकती सदाएं लगा रही हैं कि हाँ सदाएं लगा रही हैं कि तुम कर। शुक्रिया। बहुत खूब। जी। वक्त भी खत्म हुआ। वक्त ख़त्म हुआ। साथ साथ ये कि मैं चाहूँगा कि अलार्म बजे या बजर बजे ऐसे टोकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तकरीर का फीडबैक में लेना चाहूँगा शेफ असद से। पसंद है आपको, तकरीर का शौक़ रहा कभी? बिल्कुल। कभी हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन जो है जब भी मौका मिलता है सुनते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, और बहुत अच्छी माशाल्लाह फर्स्ट तकरीर बहुत अच्छी। वैसे आप एग्री करते हैं, आप शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर? मेरे ख्याल में हर जो आई गेस कि जो हर बाशऊर इंसान है इस माशरे में वो शर्मिंदा है, और उसकी बहुत सारी हर सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट वो होगी जिससे शर्मिंदा होंगे। एक छोटी सी चीज़ जो मैं अक्सर फ़ील करता हूँ कि हम लोग बारहा कहते हैं, हर होस्ट कह रहा होता है, और घरों में भी बात होती है कि गंदगी की हम बातें तो बहुत करते हैं कि गंदगी बहुत हो रही है, लेकिन उसको हम पूरा नहीं करते। चले शर्मिंदगी को, इस आर को मिटाते हैं और आज कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिस पे नाज करें आने वाले भी रहने वाले भी। मगर उससे पहले ले लेते हैं एक थोड़ा सा छोटा सा वक्फा। इरफान रमज़ान में आपका इंतजार रहेगा। जी, इरफान रमज़ान में खैर मकदम है आपका, खुश आमदेद कहेंगे आपको। और अल्लामाहुल बयान की तफसीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज अंदाज़े बयान में हम। यानी इंसान को और क्या मिला है, यही है कि वो हैवान नातिक है, बोल सकता है तो फिर अच्छा बोले और अपने जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी करे। तो लिहाजा अंदाज़े बयान में जो अगला मुकर्रर आ रहा है वो सना कौन है? जी, वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शिराज अली। और शिराज, आपका वक्त शुरू होता है अब। उम्मत मुस्लिमा का लहू बह रहा है सदर अली वक़ार कि गुज़िश्ता 72 सालों से उस फिरदौसे अर्ज़ी पे शायद इतने जानवर ना ज़िबाह किए गए हों जितने इंसान ज़िबाह किए गए। कि हम तो शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होने पर कि जब अमरीकी मज़ालिम ने ख़ित्ता अंबिया को यूँ अपनी लपेट में लिया कि ग़ज़ा व बगदाद की गलियों से इंसानियत के 40वें की नवाएं बुलंद हुई और सरज़मीन शाम खून शामों की नज़र हुई। अपने शनाख्त मांगते रोहिंग्या के जिस्मों की आहो बुका किसी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के गोशों तक न पहुंच सकी। और जब ये दरिंदगी इन्हीं गोरों के सधाए हुए बनियों में मुंतकिल हुई तो फिर इंसानियत खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि फिर होली के लिए किसी और रंग की ज़रूरत बाकी न रही। कि फिर जामिया मिलिया से लेकर जामिया अलीगढ़ तक के दरो दीवार खूने मुस्लिम से रंग दिए गए। आप ही बताइए जी वक़ार, क्या भारतीय फौज के मजालिम से मरने वाले इंसान नहीं? कलमा पढ़ना जुर्म है इनका और कोई गलतान नहीं। इसराइल ने अहले फ़लस्तीन पर जीना दुश्वार किया, लाशों के अंबार लगाए,
ظلمت کا پرچار کیا. خون مسلم کے بہنے پر مچتا کیوں کوہرام نہیں. عالمی دہشت گرد امریکہ, دہشت گرد اسلام نہیں. ان گندمی رنگت کے حامل جسموں سے ٹپکتا لہو ان گوروں کے لیے محض پانی کی حیثیت رکھتا ہے صدر علی وقار کہ ہمارے بیت المقدس کی تقدیس کو اسرائیلی فوجیوں بوٹوں تلے پامال کیا گیا. چیچنیا میں ہمارے قہر زدہ لاشوں کو گھسیٹا گیا. ہندوستان میں ہماری بستیوں کو زندہ جلا دیا گیا. مگر ہم اس دور کے انسان ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتے رہے. ان تمام تر مظالم کے بعد نظر اقوام عالم کی طرف اٹھتی ہیں تو چائنا کی معاشی اونچائیوں میں دم توڑ دیتی ہیں کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ بےایمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. جی, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں لہرائے ہوئے. یہ شرمندگی کا ایک الگ لیول ہے جب انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ شرمندہ ہے. یعنی وہ جاہل جو یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں یا پھر سب جاہل ہیں اور میں اکیلا عالم ہوں. بہرکیف یہ ایک اچھی تقریر تھی, مجھے ذاتی طور سے لطف آیا, مگر اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, وہ تو عابد علی امنگ ہی کریں گے. نیکسٹ اگلا مقرر کون ہے؟ اگلا مقرر جو ہے وہ ان کو بھی ہم بلاتے ہیں, وہ آ جائیں ہمارے ساتھ. خواجہ سعد موجود ہوں گے جن کا تعلق ہے دی پیراڈائز اسکول اینڈ کالج سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقرر ابھی ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں. ان کا موضوع بھی یہ ہے, ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر, اور آج آپ یہ مان لیجئے کہ میں اور آپ ہم سب شرمندہ ہیں اپنے اعمال پر بھی اور اپنی سوچوں پر بھی, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے ساتھ خواجہ سعد موجود ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر علی وقار, تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے. جب وادی مشرق سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے. نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے کسی محبوب کبریا کی حشمت سازی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. تب جا کر 14 اگست 1947 کو ایک وطن دنیا کے نقشے پر قائم ہوتا ہے صدر علی وقار, کہ یہ تو ایک دیس ہوا کرتا تھا جہاں ہر سمت ہریالی ہوا کرتی تھی, مگر آج میں اسی دیس میں نفرت و عداوت کے جھونکے چلتا دیکھتا ہوں کہ جہاں پینٹ شرٹ پہننے والے کو مہذب اور شلوار قمیض اور ٹوپی لگانے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر کہ جہاں لاہور شہر میں 2 سالہ بچے کو تو قتل کر دیا جاتا ہے مگر قاتل دندناتے پھرتے ہیں. میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر کہ جہاں 14 سالہ لڑکی کو کسی 60 سالہ بوڑھے شخص سے بیاہ دیا جاتا ہے. میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر کہ یہاں ہر روز نفرت و عداوت کا بازار سجایا جاتا ہے. امیر غریب کا گوشت نوچتا دکھائی دیتا ہے اور غریب بس یہی صدا بلند کرتا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی تو مسیح ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے, افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی. شکریہ. بہت خوب, شاندار. کووڈ کی وجہ سے یہاں آڈینس اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہے ویسے نہیں آ رہی, لیکن یقیناً تالیاں بنتی ہیں اور بجنی بھی چاہیے ہوتی. آپ تمام لوگوں کی تقریر کے اوپر عمدہ اور احسن. اس سے پہلے کہ اگلے مقرر کا تعارف ہو, میں سارم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, لطف آ رہا ہے ویسے تقریر کا, آپ کو ذاتی طور سے شوق رہا, کام تو ہمیشہ آپ نے دبنگ کیا. اس تقریر کا زیادہ لطف آیا کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں مجھے روزانہ, تو اس کا زیادہ لطف آیا مجھے. زبردست زبردست. کون آ رہا ہے سنا؟ جی, اور ہمارے ساتھ جو نیکسٹ موجود ہیں یہ ہیں داؤد یونیورسٹی سے اویس اشرف. اویس, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی. رات خاموشی کا پیکر ہوا کرتی ہے, اطمینان و سکون کی کیفیت ہوا کرتی ہے, لیکن ان آنکھوں نے ایک رات ایسی بھی دیکھی
जब एक इंसान चीख चीख कर दूसरे इंसान से इंसानियत की भीख मांग रहा था। ये रात 9 सितंबर 2020 की वो रात है जब सुनसान सड़क पर कमसिन बच्चों के सामने माँ की इज्जत तार तार हो रही है। अली वक़ार, ये वो वक्त है जब ज़मीन से आसमां की जानिब ऐसी निदा बुलंद होती है जिसे सुनकर हर जी शऊर का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। क्या अली वक़ार नन्हे बच्चों की मासूमियत ये सदा बुलंद करती है, खुदाया खुदाया गर ये दौर भी आना था कि औलाद के सामने माओं की इज्जतें पामाल होने लगें, तो हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। अली वक़ार, जब ज़ैनब, फरीहा, सना जैसी हमारी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें पामाल होती रहें, इस दौर में इस्लामी जमहूरी पर कोई जवाबदेह ना हो, तो शर्मिंदगी होती है। जिस दौर में ज़िला लिया में बिल्किस सलीम गुर्बत से तंग आकर अपने कमसिन बच्चों को बराए फ़रोख्त का हार पहनाकर बाजार लाती है, शर्मिंदगी होती है। अली वक़ार, जिस दौर में जाली डिग्रियां लिए सरकारी कुर्सी पर बैठें और हैदराबाद का इंजीनियर हाथों में लिए गलियां साफ करे, शर्मिंदगी होती है। अली वक़ार, जिस दौर में तालीमी निज़ाम चलाने वाले तालीम का सौदा करने लगे, शर्मिंदगी होती है। जिस दौर में मस्जिदों मदरसों से मोहब्बत का पैगाम देने वाले नफरत का सामान बेचने लगे, शर्मिंदगी होती है। कि अली वक़ार, जिस दौर में दिन दिहाड़े माओं के लख्त जिगर बेगुनाह लापता होने लगे, शर्मिंदगी होती है। हाँ, हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि अब गुनाहों सवाब बिकते हैं। मान लीजिए जनाब, बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माप बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। आजकल इनकलाब बिकते हैं। शुक्रिया। आजकल इनकलाब बिकते हैं, गालिबन इसका एक इशारा एक किताब की तरफ है जो मज़ार में रखी हुई और बिकती होगी। मगर आजकल इनकलाब बिकते हैं नहीं बिकते, इसका फ़ैसला आपने करना है, ऑडियंस ने करना है। मगर इस वक्त एक खूबसूरत अंदाज से तकरीर के फ़राइज़ को अंजाम दिया गया। अब हम चाहते हैं कि आबिद अली उमंग से फ़ैसला लें, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि लज्जत का मामला भी बरकरार रहे। हो सकता है कि वहाँ कुछ पक चुका और हमसे छूट जाए, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सना, यकीनी तौर से अब कुछ ना कुछ तो पहुँची होगी मंजिल किसी तरह पे, कुछ बनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास जो मेमनी चार्ट है, फर्स्ट रेसिपी हमारी वो तकरीबन तैयार है और यहाँ मैं अब उसको डिश आउट करूँगा और जैसे मैंने कहा था कि उसकी प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जल्दी से सुन लीजिए। कड़ी हमने तैयार कर ली थी, ठीक है, और उसके बाद जब कड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई, मैं जा रही हूँ किचन में ताकि मैं जाके देख सकूँ। तफज़्ज़ल तफज़्ज़ल। और कड़ी जब गाढ़ी हो गई तो फिर यहाँ पर मैंने इसमें चने ऐड कर दिए थे। ओके। और जैसे कि मैं भी हैंड वॉश कर लेती हूँ। बिल्कुल, आप हैंड वॉश कीजिए कि आप हैंड वॉश करें जब भी आप किचन में जाएं। कोविड का दौर है, ये कैसे ओपन होगा। और मैं यहाँ पर जब तक ये मेमनी कड़ी चाट जो है इसको डिश आउट करता हूँ। सारिम भाई, घर में खाना आलिया भाभी बनाती हैं या आप भी इस तरह किचन में चले जाते हैं, इस तरह सना गई हैं? सर, हमें तो चाय बनानी भी नहीं आती। राइट। अच्छा, मैं किचन में आई हूँ और मैं एक बड़ी ख़ास बात जो है वो आज किचन में खड़े होके करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है और गर्मी भी है, और मैं स्पेशली यहाँ पर सलाम पेश करूँगी उन तमाम हाउसवाइफ को, ख़वातीन को जो सहरी भी बना रही हैं, जो इफ़्तार भी बना रही हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में रोज़े की हालत में अपने प्यारों के लिए इतने मज़ेदार खाने बनाना, दस्तरखान सजाना, ये हमारी रिवायत भी है और ये हमारी मोहब्बत भी है। और तो साथ साथ जो है औरतों के साथ साथ मैं चाहूँगा अच्छा, ओके, उन शेफ्स के लिए भी कि जिंदाबाद। जो जनाब घरों में तो नहीं लेकिन रेस्टोरेंट्स में आप लोगों के लिए अफ्तार सजाते हैं, और आप यकीन कीजिए कि वो भी इस असद भाई, ये तो अपने जो अपने काम मुकद्दर की कर रहा बात है ना। कुछ खवातीन घर में खाना बनाती हैं, कुछ रमजान नशरियात में बातें बनाती हैं, जिसको जो मौका मिल जाए। अब आबिद अली उमंग बताएंगे नताइज क्या है। दोनों काम करती हूँ। चलिए जी, नताइज सुनना चाहेंगे हम लोग, जरा कम वक्त है हमारे पास। हमारे पास तैयार है। चाट मसाला हमने सलामी का स्प्रिंकल कर दिया। अब आप बताइए। राइट जनाब, तो ये डिश आउट हो चुकी है। डिश आउट हो गई है। और इसमें भी आपने भगाड़ लगाना है। भगाड़ लगाना है। ये ओके, कड़ी और जल्दी पत्ता से लगा लीजिए, उसके बाद और क्योंकि हमें ब्रेक सना, आप रिजल्ट सुनने के लिए एक्साइटेड हैं?
तकरीर के रिजल्ट हमारे सामने हैं। बिल्कुल आप जी, रिजल्ट की आबिद बात भाई। कीजिए। बेटा आप लोगों की माशाल्लाह चारों बच्चे बहुत अच्छा बोले और मैंने पहले भी ये जुमला कहा है कि आज का क्वालिफाई करने वाला शख्स किसी भी तौर पर सलाहियत में दूसरों से ज़्यादा नहीं है, उसकी 2.5 मिनट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस 2.5 मिनट की परफॉर्मेंस पर जज किए जाएंगे, सलाहियत आप सब की एक जैसी है माशाल्लाह। एक छोटी सी बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा बेटा, जब कभी भी एक तो ये कि रमज़ान हमारे लिए बाबरकत महीना है, ये हमारा मजहबी त्यौहार है। मेरी राय ये है कि हमें बाकी मज़ाहिब के त्यौहारों का भी एहतराम करना चाहिए। हमें ज़रूर जो है वो किसी दुश्मन मुल्क की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उनके मजहबी त्यौहार होली को अगर किसी भी हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाए तो मेरा ख़्याल है कि रमज़ान तो सलामती का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। तो मेरे ख़्याल में हमारे नेशनल मीडिया से ये चीज़ फ्लोट नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल किया जाए। दूसरी बात ये कि बेटा हमारी पहली स्पीच हमने सुनी, बहुत इन वेरी शॉर्ट। जब कभी आप आते हैं यहाँ पर तो आप हमें कन्विंस करना चाहते हैं, मुझे या किसी को, ऑडियंस को, बेटा देयर शुड बी सम एक्यूरेट रेफरेंसेस। आपने जब ये बात कही ना कि इनका अगर मैं हवाला दूं, उन्होंने कहा 2 साल की बच्ची के साथ अगर ज़्यादती होती है उसका नाम कोट कीजिए, उसका शहर कोट कीजिए, हमें बताएं तो सही कि आपने इस एक्यूरेट फिगर को कहाँ से पेश किया, तो हमें अच्छी तरह से ये चीज़ सुनने को मिल सकती है। दखलदर माकुलात के लिए माज़रत, एक वफ़ा न्यूज़ का है, वो लेने के बाद फिर हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे फौरन से। मैं डायरेक्ट अनाउंस कर दूंगा आपको, बस वफ़ा लेके आते हैं। सेकंड्स का गेम है, वापस आएंगे, जल्दी से लौट कर आएंगे। इंतजार रहेगा इरफान रमज़ान में आपका। खबर देखें, खबर के बाद इल्म यहाँ पे मिलेगा आपको, जल्दी से आए। इरफान